ખરેખર ઝૂમી રહ્યું છે યાર. ગુરુજી અમારો અંતરનાથ, આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો અંતરનાથ, અમને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો અંતરનાથ. અમને આપો આશીર્વાદ. એક વિનંતી સૌને કરવી પડશે. ગુરુ ભગવંતના મંગલ વચન લેતા પહેલા આપણા સૌના મોબાઈલ ક્યાં સ્વિચ ઓફ કરી દઈએ અથવા એને શાંત કરી દઈએ. અત્યંત જરૂરી છે આપણા મોબાઈલને શાંત કરવા. ખાસ જરૂરી હૃદયને જલંકૃત કરીએ. બહારની સલામી પણ અપાઈ રહી છે. હૃદયમાં ગુરુ ભગવંત પધારે, હૃદયમાં ગુરુ ભગવંતના વચન પધારે. સરસ મજાના જીનશાસ્ત્રની ઉત્તમ પરંપરા સામુદાયિક વંદનમાં પ્રવેશ થઈએ. સાહેબ વંદન કરીએ. ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. ઈચકાર સુહરાઈ સુખ તપ શરીર નિરાબદ સુખ સંજમ જાત્રા નિર્ભવ છોજી સ્વામી શાતા છેજી ભાત પાણી લાભ દેશોજી. ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. ઈચ્છા કરણે સંધિ છે ભગવાન અભૂતમી અભ્યંતર રાયમ ખામેવું છમ ખામેવીર. જંકિંચી અપત્યમ પરપત્યમ પત્તે પાણે વિને વયા વચ્ચે આલાવે સંલાવે ઉચ્ચાસને સમાસને અંતર્વાસે ઉરીપાસાય જંકિંચી મજ્જ વિને પરિણમ સોમવા બાયરંબા તુભે જાણમ અહમ ન જાણામી તસ્મિચ્છામિ. ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. સુક્ષાતામાં સાહેબજી. ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. ઈચ્છા કરણે સંધિ છે ભગવાન વાયના સંધિ છમ ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. ઈચ્છા કરણે સંધિ છે ભગવાન વાયના લેશું. છમ ઈચ્છામી ખમાસમનો વંદ્યમ જાણી જાય સિંહ મધ્યનું નામી. ઈચ્છારી વન બસા કરી વાણે પ્રસાદ કરશો જી. નમો યુરિયાણમ નમો જયાણમ નમો લોય સંબદાહૂણમ એજો પંચનમુકારો નમભાવપણાસનો મંગલાનંદ સભેરી મડમમ વૈ મંગલમ નમો દુર્વાર રાગાની મૈરી વારની મારીને હરતે યોગીનાથાય મહાવીરાય તાઈને જય જગજીવ જોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાઓ જગબંધુ જય જગપિયા મહો ભૈવમ જય સુવર્ણમ બપમો તિત્તૈરાણો અપચ્છિમો જય જય ગુરુ લોગાણો જય મહપ્પા મહાવીરો. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. જય ધરણેન્દ્રનમં શ્રિયા પૌમા વૈ પમુનિ સેવ્ય પાય ઓમ ક્લીમ હ્રીમ મહાસિદ્ધિમ કરે ઉસિરીપાસ જગનાઓ અજ્ઞાન તિમિરાંધનમ જ્ઞાનમ જન શલાકયા નેત્રમુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે. ફરીથી એકવાર આપનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કાં તો સાયલેન્ટ કરી દેશો. જેટલા સ્વયંસેવકો છે બધા આગળ આવી જાય. મારા ગુરુદેવ જે લાખો યુવાનોના રાહબર છે, જે સાધર્મિક હિતચિંતક છે, જેમણે 400
ને 11 પુસ્તકો લખ્યા છે. હું તો કહું પુસ્તક નહીં, દરેક એક પુસ્તક એક ગ્રંથ છે. જે સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદ જે પદ્મભૂષણથી જે વિભૂષિત છે એવા ગુરુદેવ શ્રી રત્ન સુંદર સુરી મહારાજાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના. સર્વ સાધુ ભગવંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના. સાધ્વીજી ભગવંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના. સકળ સંઘને મારા કોટી કોટી વંદના. આજે ગુરુદેવ આપણા સંઘમાં પધાર્યા. આપણા સૌનું ખૂબ સૌભાગ્ય છે અને એમાં પણ વિશેષ અમારા ઘરે એમણે પગલાં કર્યા, ખૂબ ઉદારતા બતાવી. એ બદલ બી હું સકળ શ્રમણ અને શ્રમણી બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ગુરુદેવ હું જ્યારે નાનો હતો ને ત્યારે હું પપ્પાને ઘણી વાર પૂછતો કે આ ફુગ્ગો ઉપર જાય છે તો જેટલા યુવાનો બારું બને ને વ્યવસ્થામાં ન ઉભી રહો એ નજીક આવી જાઓ બધા. ચાલો બધા કાયમ વ્યવસ્થા કરજો. સાંભળશો ક્યારે પછી? ચાલો બધા વ્યવસ્થા થઈ જશે. એકદમ નજીક આવી જાઓ. આપણા સંઘમાં વડોદરા પ્રવેશ સાથે પધારી રહ્યા છે. સાહેબના ખૂબ ખૂબ આપણા સંઘ પર ઉપકાર છે. મુનિ તરીકે આ ઘરે આપણા સંઘની જડિત થઈ. સાહેબ વખતે ઉદેવસ્થ મહારાજ ગોંધલ શ્રી મહારાજની ગાદી વિચાર પ્રતિષ્ઠા હતા ત્યારથી સાહેબના પુણ્ય પ્રભાવને આપણા સંઘને જાગી રહી. આજના પ્રસંગે સંઘ તરફથી શ્રી ભરતભાઈ, જયવર્ધનભાઈ, ભાવેશભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ અને સંઘના કમિટી સભ્યો સાહેબજીનું કામગીરી બહુમાન કરવા માટે પધાર્યા. તાત્કાલિક ગતિ પધારી ગઈ. ચાલો ચાલો કમિટી સભ્યો પણ પધારી ગઈ. કરી સકે ના કોઈ તારા ગુરુના સરદારા જીવો સુરી જય હર્ષ ગુરે ભાવના જીવો સુરી જય હર્ષ ગુરે
शिल्पाबेन, सरोजबेन, बाबराबेन, काशीबाबेन અને નંસાબેન ધારાવકી સભી વખતને કામડી ઉડાવે. અને આજના પ્રસંગમાં જે રીતે આપણા સગનો જે રેગ્યુલર રીતે જે આપણે આજના નવકાશના લાભાર્થી શ્રી ભાવેશભાઈ છે, ભાવેશભાઈનું બહુમાન શ્રી દિનેશભાઈ કરશે. गुरु पूजा गुरु भक्ति गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर गुरु तुमसे बड़ा जग में ना कोई जीवन में गुरु भक्ति गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर गुरु तुमसे बड़ा जग में ना कोई जीवन में गुरु तुम हो मेरे भगवन मैं जीवन चरणों में अर्पण मुझ दिन में कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर શૈલેષભાઈનું બહુમાન પ્રશાંતભાઈ માધ્યમનું સપના ભાગ્યશાળી પ્રકારે અને मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी हैं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं આજે જે રીતે નવકાશીના લાભાર્થી જેમ આવતીકાલના લાભાર્થી બી ધનંજયભાઈનું બહુમાન એ સભાસદના શ્રી જયંતિભાઈ તેમજ કાંતિભાઈ બહુમાન કરે છે. બોલો જીતુ સાહેબના माता गुरु पिता गुरु की बंधु गुरु सखा तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर બોલો જીતુ સાહેબના એ વકી પૂજ્ય ગુરુ ભગવંત હવે વ્યાખ્યાન શરૂ કરે તદ્દન એક ફરીથી વિનંતી મોબાઈલ ચાલુ હોય તો સ્વિચ ઓફ કરી દેવા વિનંતી સાયલેન્ટ મોડ પર મૂકી દેવા. ગુરુદેવ ચાલો બહેનો નજીક આવી જાઓ. પાછળ જગ્યા નથી. ખૂબ ઝડપથી વ્યવસ્થા સંપન્ન કરવા વિનંતી. ખૂબ ઝડપથી. શરીર થોડા આગળ આવી જાઓ ભાગ્યશ્રી બહેનો. ભાઈઓ જેટલી જગ્યા છે ફરી જવા વિનંતી. પ્લીઝ એક જ વખત આવી જાઓ, પધારી જાઓ અને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળજો. આજથી પ્રારંભ થઈ રહી છે 13 અને 14 નિઝામપુરા 15 તારીખથી અકોટાના સરસ સયાજીનગર ગૃહમાં પૂજ્યપાદશ્રીનો પ્રવચનની ધારા બધાને પધારવા નમ્ર વિનંતી. વચ્ચેની જગ્યા ખાઈ જાઓ પ્લીઝ. વ્યાખ્યાન પત્યા બાદ સકળ સંઘને ગુરુ ભક્તો તરફથી પ્રભાવના ચેતનનો લાભ આપવા માટે વિનંતી. शरीर जितना जिनका बहुत कमजोर था वो चाहता था कि शरीर कुछ मेरा बन जाए और किसी ने बता दिया किताब ऐसी निकली है यदि वो किताब पढ़ ले तो निश्चित तौर से शरीर तेरा हाइट पे चला जाएगा. वो किताब लेने के लिए गया. पब्लिशर को पूछा, उसने बोला सोल्ड आउट, एक भी कॉपी नहीं है. अलमारी से देखो तो एक तो कॉपी निकाल दो, चाहे ब्लैक में पैसा देना पड़े तो मैं देने के लिए, मगर है ही नहीं. ब्लैक का प्रश्न नहीं, मेरे पास किताब ही नहीं है. एक बार तो प्रयास करो. और किताब सुनने का प्रयास किया. ये चाहता था कि शरीर कैसा अच्छा बने और किताब का टाइटल वो था शरीर कैसे कमज़ोर बने. उसने बोला ये किताब ले जाओ. उसने बोला आपने सुना कम लगता है, मेरा शरीर में बढ़िया बनाना चाहता हूँ
ये तो शरीर को पतला बनाने का है। उसने बोला बात तो सही है, मगर वो किताब तुम्हें चाहिए वो नहीं है, ये किताब ले लो, उसमें जो लिखा है उससे उल्टा कर देना, शरीर अच्छा बनेगा। तो आज मैं आपको हैप्पी कैसे बनना वो बताना नहीं चाहता हूँ। से यस टू हैप्पीनेस। मगर हैप्पी बनने में कौन कौन रास्ता मेरे लिए भयंकर बन सकता है, ऐसे कौन से रास्ते के जो मुझे हैप्पी बनने ही नहीं देते, रिच बनने देते, सक्सेस बनने देते, साइंटिस्ट बनने देते, मगर हैप्पी नहीं बनने देते। आज का तुम्हारा जो भी माहौल है, माहौल के बीच 1 घंटे के प्रवचन में सब कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मगर आपका माहौल मैंने जो बता दिया 2 ही है, या यू वुड लाइक टू बी रिच एंड यू वुड लाइक टू बी सक्सेस। शायद एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में हैप्पीनेस का गोल बनाया होगा। मैं रिचनेस सक्सेस का विरोध नहीं करता हूँ, मगर हैप्पीनेस के बलिदान के बाद तुम रिच बनो, हैप्पी बनो, सक्सेस बनो, मैं नहीं चाहता हूँ। नंबर 1, इफ़ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, इन 5 को आप दूर करते चलो। जैसे आपके जीवन में से वो धीमे 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 कम हो गया, हैप्पीनेस अपने आप से आपके पास आकर ही रहेगी। आपको मालूम नहीं है हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, मालूम है? व्हाट मीन्स हेल्थ? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या आप बता पाएंगे 2 ही मिनट में? नहीं, सक्षम शरीर वो नहीं है। आपको हेल्थ की डेफिनेशन करने के लिए वही नेगेटिव बताना पड़ेगा, न टीबी, न कॉलेरा, न मलेरिया, न कोलेस्ट्रॉल, ये हैप्पीनेस। मुझे हेल्थ माने हेल्थ वो होती है शरीर में एक भी रोग नहीं है। हैप्पीनेस क्या होता है? ये 5 चीज़ें आपके पास नहीं है, आपको हैप्पी बनने में कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 1, नो रेस। आप अपने आप को एक बार चेक करो। आप सुबह रास्ते में घूमने के लिए जाते हो, किससे रेस नहीं लगाते हो? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, चलते चलते तुमने कभी, ओलंपिक की बात अलग होती है कि जहाँ रेस होती है, मगर 24 घंटे तो आप रेस में कभी नहीं रहते हो। आप જણા કરતા કોઈ આપણો જેમ અધિકાર છે એમનો અધિકાર છે। सच बोलूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहीं रेस में हो? ये अभी जो कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही है ना, लड़के लोगों को मैं देखता हूँ, लगता है इनका बचपन, इनकी युवानी कहाँ ख़त्म हो गई। 10th की एग्ज़ाम, 12th की एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम, पूरी की पूरी व्यवस्था टैंक्स में पड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये ताकत है, नो रेस। आपको जो गति से जाना है वो गति से मज़े से चलो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ तुम रुक जाओ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी किसी से रेस नहीं है गुरुदेव। मैं गाड़ी अपने आप से टॉप गियर में चलाना चाहता हूँ, तुम जानो, मगर मेरे से आगे निकल गया और उनको मैं ओवरटेक नहीं, प्लीज़ नहीं। आपकी हैप्पीनेस को वो डिस्टर्ब करेगा। रेस की मानसिकता हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करती है। सच बोलो, आप यू आर रेडी फॉर दिस? नो रेस इन लाइफ। एक एक चीज आप मुझे बता पाएंगे? 1 घंटे में 5 स्टेप समाप्त करना आसान काम नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास रेस, मैं एक बताना चाहता हूँ, 2 भाई दानों के कैरम होता है ना, कैरम, इनकी कंपटीशन थी और ये था कि एक भाई एक और था, एक भाई दूसरी ओर था, और धीरे 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 मैच चलती चली, सेमीफाइनल हुई और फाइनल में दोनों भाई आमने सामने आ गए। ऐसे भी कोई होता है तो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होती है फाइनल में, तो कोई इतना तनाव नहीं होता है, मगर भारत वर्सेस पाकिस्तान हो तो फिर देखो तो मेरे घर में क्या हो जाता है। हाँ, ये 2 भाई के बीच में रेस कैरम की, और पूरा माहौल ऐसा था कि क्या होता है, छोटा भाई की बड़ा भाई। और तुम ये मानते हो हैप्पीनेस क्या हो सकती है? और रात को पूरा विश्वास था बड़े भाई को कि इनकी कोई औकात नहीं मेरे सामने टिक जाए। एक स्ट्राइक लगा दी, मैं जीत गया। मगर बड़ा विचार किया, ये मैच में जीत जाना बहुत आसान है, ताली मिलना वो भी आसान है, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मगर कैरम जीतना इससे बेटर मेरे भाई को मैं जीत जाऊं। और दूसरे दिन सबकी अनएक्सपेक्टेशन था, सबका अनएक्सपेक्टेशन, और छोटा भाई जीता नहीं, छोटे भाई को उसने जिता दिया और पूरा माहौल रो रहा था। दोनों छोटे भाई, परिवार તમને કહું, જીતીને તો જીતી શકાય છે,
હારીને જીતનો પણ લાભ ક્યારેક લેવા જેવો છે. જીતીને તો જીતી શકાય, ક્યારેક હારીને પણ જીતી શકાય. भाई आज હું दृष्टांत તમને કેમ આપું છું? આ व्याख्यान में कैरम दृष्टांत में કેમ આપ્યું? भाई एक ऐसा माहौल था कि जो हमने कभी सोचा नहीं था. एक रेस, मेरे बड़े भाई को मैं जितने नहीं दूंगा वो छोटे भाई की मानसिकता हो सकती है, मगर छोटे भाई ने बड़े ने छोड़ दिया. मेरे छोटे भाई को मुझे जिताना है. ये बात इनकी मम्मी ने दोनों भाई के बीच में की. दोनों भाई की आंख में आंसू थे, मेरी खुद की आंख में आंसू थे. आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप रेस में से निकल जाना चाहते हो? अब करोड़ों रुपए के मालिकों, इनका मैं विरोध नहीं करता, फिर से रिपीट, नो रेस. आपकी मानसिकता क्या है? एक एक जल्दी जल्दी बता देना. दुनिया आपको उकसाएगी, चल 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 तुम चाहे, मगर आप बोल सकते मैं इस रेस में नहीं हूं. मैं बिजनेस कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं बिजनेस का ग्रोथ भी कर सकता हूं, मगर किसी के साथ में रेस में रहने के लिए मेरी मानसिकता ही नहीं है. और मुनिजन में भी आगे बढ़ते. मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है जय सुंदर जी महाराज डभोई के, जितेंद्र जिनका नाम जय सुंदर महाराज. जब मैं बहुत दीक्षा ली थी, और जितेंद्र तो बहुत ग्रस्त जीवन में था, जय सुंदर विजय. और प्रेम सिम्हा को मैं पहली बार मिला तो प्रेम सिम्हा ने मुझे बता दिया कि रत्नंदन तेरा अभ्यास कहाँ चलता है, तुम संस्कृत पढ़े नहीं है. फिर भी आपकी परिभाषा में कहूँ तो जय सुंदरी बीकॉम में था और मैं तीसरी क्लास में था. आपकी भाषा में समझ में आया. तो प्रेम सिम्हा ने मुझे बता दिया, ये जितेंद्र अभी तो दीक्षा भी नहीं लिए और बीकॉम तक पहुँच गया और तू तीसरी क्लास में है. तब मैंने बता दिया मैं रत्न सुंदर हूँ, वो जितेंद्र है, मेरी कोई कंपटीशन नहीं. हल्केपन से, बिल्कुल मजा से वो आगे निकले. मैं धन्यवाद दूंगा, मगर मैं जाऊँ मुझे कोई टेंशन नहीं है. आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास ये ताकत है, आपसे कोई आगे निकला मे भी पॉसिबल, आप जाने दो, मगर उनको आगे देखने के बाद गुरुदेव मैं अपनी गति बढ़ा करके मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ. जल्दी जवाब चाहिए. आपके पास ये हैप्पीनेस को बचाने की पहले नंबर की क्षमता नो रेस. बाजू वाले के घर में जो टीवी है, मेरे घर में जरूर नहीं. टीवी नहीं लाऊंगा ऐसा नहीं है, मगर बाजू वाले के घर में आ गया इससे टॉप लाऊंगा, वो मानसिकता आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो. Any answer from you? Any question from you? Any doubt from you? आप गाड़ी लेके जा रहे हो, हवा आ रही है, स्टीयरिंग व्हील पे तुम बैठे हो, हवा से तुम्हारे बाल बिखर रहे और अंदर म्यूजिक मजे से चलता है, जैसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुखी मैं हूँ. और उसी टाइम आपकी बाजू में से एक गाड़ी भागी और तुमने देख लिया, बस तुमने एक्सीलेटर दबा दिया. क्या काम था यार, जाने दे इनको. क्या लगता है શું કહ્યું? પણ આગળ વધતા વધતા એ એન્ડ સ્મશાને જતો તો પછી આગળ ન વધાય, અટકી જવું પડે. તમને ખબર પડે કે લાકડા આવે છે પછી તો રિવર્સમાં આવવું પડે. आप एक बार शुरू करो, तुम देखो, तुम्हें लगेगा कि तुमने वो कछुआ और खरगोश की कथा सुनी. શું સાંભળ્યું છે? નહીં તો હે એટલે શું થયું એમ તમે મેચમાં ખબર છે ને, બે વચ્ચેની હરીફાઈ થઈ, કોણ જીત્યું? अभी मैं नई कथा कहता हूँ. वही खरगोश और वही कछुआ की मैच चल रही थी और कछुआ धीमे धीमे जा रहा था और तुमने सुना है क्या खरगोश सो गया? नहीं, खरगोश सोया नहीं, खरगोश चलते ही रहा कछुआ के पीछे. ऑडियंस पहली बार देखती रही कि क्या हो गया कछुआ को, क्या हुआ क्या यार, न सोया है, कछुआ धीमे धीमे जा रहा है, खरगोश इनके पीछे धीरे 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 मजे से, और कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया. तो वहाँ भी खरगोश हारा था, यहाँ भी खरगोश हारा. मगर एक कमाल की बात, पूछने वाले खरगोश पूछा, दोस्त समझ में नहीं आया, ये कंपटीशन में तू जानबूझ के हार गया? तो कहा हाँ. तो क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं 50 बार गोल्ड मेडल मिला मुझे, 50 बार में बिना नींद से लिए मैं आगे भागते चला और गोल्ड मेडल मिला. इस टाइम भी मुझे मिल सकता था,
मगर 50 बार गोल्ड मेडल मिलने के बाद मैंने जब ऑब्जर्वेशन किया तब लगा तेज गति से भागने में आजू बाजू में कौन है मैं तो कभी देख ही नहीं पाया। तो मुझे लगा आजू बाजू में भी मजा ले लूँ, झरना है, नदी है, हरियाली है, कोई और भी जीव मिल जाते उनसे मुलाकात। और इसलिए जानबूझ करके मैं धीरे धीरे चला और पहली बार पता चला मंजिल का आनंद होता है तो मार्ग का भी तो आनंद होता है। ना आपके बेटे के पास बैठने का टाइम, ना आपकी माँ के पास, ना आपके पिताजी के पास, ना आपकी पत्नी के पास, न गुरु भगवान के पास। गुरुदेव मंदिर में जाने का टाइम नहीं है, मैं प्रवचन सुनने का मुझे टाइम नहीं है, भागना है भागना है, कहाँ भागना है। मैं रिपीट करूँ, जानबूझ करके खरगोश हार गया था, तुम जानबूझ के हार जाओ। नंबर 1, नो रेस। इफ यू लाइक टू बी हैप्पी, नो रेस। सेकंड नंबर, नो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड माने स्टोरेज। आपके जीवन में पास्ट में किसी के साथ कुछ भी गलत बना है, आप इनको सेव मत करो, डिलीट कर दो, नो रिकॉर्ड। सच बोलो, इस सभा में बैठने वाली माता बहन सबको मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये बता पाएंगे कि पास्ट में आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया था? किया होगा, मेरे साथ भी किया नहीं, भगवान महावीर के साथ भी किया। गौशालक ने किया, गोबालक ने किया, कठपुतला ने की, सुलपाणी ने किया, चंड हालत बिगाड़ दी परमात्मा महावीर ने की, मगर भगवान फॉर एवर हैप्पी थे, क्योंकि जिसने भी मेरे साथ गलत किया था भगवान ने किसी को सेव नहीं किया। नेवर। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास रिकॉर्ड में क्या है? क्या रख के बैठे हो? आपके पिता, आपकी माँ, आपका भाई, आपकी भाभी, आपके गुरु भगवान, आपके ट्रस्टी, उसने तुम्हारे साथ गलत फहमी की, वही रिकॉर्ड करके बैठे हो, या सब कुछ तुमने डिलीट कर दिया? नो रिकॉर्ड। और बताऊं होता क्या है, प्रेजेंट आपका टॉप है, मगर गलत पास्ट का रिकॉर्ड आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर देता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जयेश, क्या लगता है मेरे साथ उसने वो किया था, छोड़ दो सब कुछ नहीं, वो गया काम से। यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते। 9 बजे तुमने पैर रखा था, 9:01 में वो नदी गई, तुम भी गए। नदी का नाम वो ही रहा, मगर नदी का पानी तो गया, बहता है। मान लिया किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, मगर सेव करके तुम क्या करना क्या चाहते हो? फॉरवर्ड। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये ताकत है गलत पास्ट को रिपीट करने की? गलती તમને તો ખબર નથી, જે ભૂતકાળ બની ગયો છે એને વર્તમાનમાં તમે નવો શું કામ બનાવો છો? તમને ખબર છે, સ્મરણ કરવું એટલે મરી ગયેલા ભૂતકાળને પાછો જીવતો કરવો, આ જ વાત છે ને। માની લીધું તમારા ભાઈએ તમારી સાથે અન્યાય કર્યો તો, પણ એને જીવતો કરીને શું કરવું છે? પણ અત્યારે શું છે? बड़ौदा में आना हुआ, बहुत आनंद है। ऐसे इस नगरी का नाम संस्कार नगरी है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर इनको लेकर ही आपके सामने मैं एक दिल से पूछना चाहता हूँ, आपके पास चलो एक नंबर बता पाएंगे, एकदम नीचे उतर आऊँ, आपके पास गलत मेमोरी का रिकॉर्ड है, फिर भी तुम बता पाएंगे मेरे जीवन में जिसका उपकार है उसकी कोई भी गलत प्रक्रिया गुरुदेव मैंने याद नहीं रखी है? चलो सब कुछ छोड़ देता हूँ, मेरे जीवन में जिसका उपकार है वो माता है, पिता है, गुरु भगवान है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है। जिसने मेरे साथ उपकार किया उसने कभी किसी चीज़ के लिए मेरे साथ गलत कुछ किया भी होगा, गुरुदेव मैंने उनके उपकारों को आंखों के सामने रखा है, इनकी गलत चीज़ को मैं डिलीट कर दिया है। आप इतना बता पाएंगे प्रशांत? ये गारंटी के साथ बोल पाएंगे मारा जे उपकारी है गुरुदेव, एनी कोई पण नबड़ी बात एने सेव 100% नहीं करी। मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, किया होगा, किया भी होगा, मैंने नहीं ये नहीं बोलता नहीं किया था, मगर अभी क्या है? सारी दुनिया की गलती को भूल जाओ, ये नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ आपने जिसका उपकार लिया है
मैं ये भी कह सकता हूँ, मेरे गुरुदेव ने भी कहीं मुझे डांटा है, मुझे मारा भी है, मगर आज वो याद रख के बैठता हूँ गुरुदेव को जिसकी कृपा से श्रेष्ठतम जीवन मिला, उनकी कोई गलती को मैं सेव करके बैठूंगा। मान लिया बेटे के सामने पिताजी ने कुछ अन्याय किया होगा, मगर वो याद रख के बैठेगा। अभी 2 दिन के पहले मैंने एक एग्जाम्पल सुना, मैं हैरान, ये माहौल, एक बेटा माँ के सामने इतना गर्मी से बात कर रहा है, इतना गर्मी से, माँ की सहन करने की हद आ गई और माँ ने एक बार बोल दिया। आज ये माहौल ये देखने के बाद लगता है कि हम तो गुरुदेव ने बाल बाल बचा लिया। और माँ ने लड़के को सिर्फ इतना कहा, बेटा बीजू तो कहीं नहीं, तने 9 महीना पेट में राख्यो छे। अब बोलवो ने छोकरानो जवाब, माँ 9 महीना पेट में राख्यो छे, तू याद करावे तने कहूं मारा पेट में આવી જા, 18 મહિના રાખું, વ્યાજ સાથે ચૂકવી દઈશ। આ હદે યાદ શું કરાવે છે? 9 મહિના આવી જા મારા પેટમાં, 18 મહિના રાખીશ તને। न माँ को माफ कर सकते, न बाप को माफ कर सकते, न गुरु भगवान को माफ कर सकते हो, किसी को माफ करने की मानसिकता नहीं है। 56 साल के दीक्षा प्रिय में जयेश बहुत कुछ गलत मेरे साथ भी हुआ है। मैं भगवान मावी के तो रत्न सुंदर किस औकात का है। कहीं संघ में, कहीं ट्रस्टी में, कहीं रास्ते में हजारों प्रसंग ऐसे बने कि जो मन को चुप सकता है। डिलीट एवरीथिंग इन डिलीट, कुछ नहीं। आपकी मानसिकता क्या? इस सभा में जो भी बैठे उनको दिल से मैं करंट टॉपिक को लेके आया हूं और रिपीट करूं, अमीर आप कल बन सकते हो, सक्सेस कल बन सकते हो, मगर हैप्पी अभी ही बन सकते हो। अमीर बनने के लिए आपके पास प्रोसेस है। सक्सेस बनने के लिए आप बोल सकते हो कि दिन में गुरुदेव करोड़पति कैसे बन पाऊंगा, बाय स्लो, बट इफ यू लाइक टू बी हैप्पी इन दिस मोमेंट एट प्रेजेंट यू कैन बी हैप्पी। अभी ही 1 मिनट की देरी नहीं ले सकती है। आज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, आपके पास ये है नो रिकॉर्ड ऑफ बैड मेमोरी। क्या एक बात करो, अभी इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो कम से कम इतना करो, सामने में वो व्यक्ति आ ही जाती है और आपको याद आ जाता है तो भी उनको शब्द का बल प्रयोग कभी मत देना, नेवर। तू कौन છે તને ઓળખું છું नहीं, आ शब्द प्रयोग क्यारे करने। 2 मिनट में बता दूं, बुद्ध का प्रवचन चलता था, एक लड़का आया बुद्ध का और मुंह पे थूक दिया और थूकने के बाद बुद्ध ने पहुंच लिया और वो लड़का गया। घर पे जाने के बाद रात को उसको नींद नहीं आई। उसने बोला एक संत के सामने मैंने इतना गलत व्यवहार किया, कुछ बोले भी नहीं, वही प्रशांत चेहरा। और दूसरे दिन उनको पश्चाताप हुआ और बुद्ध के पास क्षमा मांगने के लिए गया, बदन मुझे माफ कर दो। और अभी देखो दिलेश, बुद्ध ने कहा मैं तुझे पहचानता नहीं। क्या इनके बाजू में इनका शिष्य आनंद बैठा था, आनंद इनका नाम था, और उसने कहा गुरुदेव इतना झूठ बोलते हैं, यही तो है कलवाना, मगर बोला नहीं। फिर वो उसने लड़के ने बोला गुरुदेव वो कल में आया था वही, देख पहली बार मैं तो देख रहा हूँ। अभी वो हैरान लगे तो बात क्या करूँ, तो बोलते मैं पहचानता नहीं तुझे। फिर भी बुद्ध ने कहा देख मेरी क्षमा देने से तुझे शांति होती है, तो मैंने बोल दिया मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और वो गया। जाने के बाद आनंद ने बुद्ध को पूछा भगवान समझ में नहीं आता, आपने जो भी किया सही किया होगा, बट आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। वो आदमी खुद बोलता मैं कल थूक के गया था और आप बोलते मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ। आनंद एक बार बताऊँ, कल जो आया वो आदमी कैसा था मालूम है? इनके पैर लड़खड़ाते थे, इनका दिमाग गर्म था, इनकी जबान में गर्मी थी, उनके मुंह से थूक निकल गया। आज जो आदमी आया उनका पैर शांत था, जबान मीठी थी। ये कल वाला थोड़ा था, आज वाला था, कल वाला गया। नो रिकॉर्ड,
नंबर 1 नो रेस, नंबर 2 नो रिकॉर्ड, नंबर 3 नो राइट। राइट माने अधिकार। इस घर में मेरा अधिकार है। बहू सास के सामने ये बोलेगी मेरा अधिकार है, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बोलेगा ये मेरा अधिकार है। एक लड़का अपने बाप को बोलेगी इस घर में मेरे भाई का अधिकार है तो मेरा भी तो अधिकार है। ये अधिकार की बात चलेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी। पिताजी ने सिर्फ इतना बोला, राम गद्दी तुझे दे रहा पक्का था, मगर एक मजबूरी थी, मैंने गद्दी भरत को दे दी। ओके, गादी आपकी है, आपकी गद्दी किसको देना वो निर्णय आप कर सकते, मेरा कोई राइट नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके मन में अधिकार का भाव है क्या? ये डिस्टर्ब कर देगा अधिकार की मानसिकता। नो रेस, नो रिकॉर्ड, नो राइट। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछा, सच बोलो, जब भी आपको राइट की बात आती है तब आपको ड्यूटी याद आती है? एक वहू तरीके घर में मारो आ अधिकार है तो वहू तरीके घर में मारी आ फरज पण छे। आई वुड लाइक टू आस्क यू इन मेमरी व्हाट इज राइट और ड्यूटी? एक आचार्य तरीके मारो अधिकार है तो आचार्य तरीके मारी फरज पण छे। जिस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो बंटवारे में इतना भयंकर तूफान था पाकिस्तान में। पूज्यपाद आचार्य भगवान वल्लभ सूरी महाराज वो टाइम पाकिस्तान में थे, बमबारी हो रही थी, बुलेट यहाँ से निकल दी, यहाँ से निकल दी। सब संघ ने आकर के बोला गुरुदेव चलो, अपना काम नहीं है, या खत्म हो जाए कि आपके जान पे खतरा है। तुम्हें मालूम है दिल्ली में जो वल्लभ सूरी महाराज के बहुत प्रधान भक्त लोग थे, इनसे मुझे मेरी मुलाकात हुई थी। मेरा वो सदनसीब नहीं रहा कि मैंने वल्लभ सूरी माँ को देखा हो, मगर उसको मैंने पूछा था तुम सब विजय वल्लभ के पीछे थे, पागल है, आई वुड लाइक टू नो क्या राज क्या है। और वो पुरुष थे जो वल्लभ सूरी माँ के साथ वो टाइम थे, और उसने बता दिया हमारा साहब જ્યારે ગોળીબાર થતો હતો ને બોમ્બમારી થતી હતી ત્યારે વલ્લભ સિંહ મને વિનંતી કરી સાહેબ પાકિસ્તાન છોડીને હિન્દુસ્તાન ચાલો, પ્લેન તૈયાર, ટ્રક તૈયાર, જલ્દી ચાલો। એ વખતે વલ્લભ સિંહનો જવાબ હતો, જૈન સંઘનો આચાર્ય બેન્ડ બાજા સ્વીકારવા માટે નથી થયો, સંઘનો છેલ્લામાં છેલ્લો સભ્ય પાકિસ્તાન હશે ત્યાં સુધી વલ્લભ सूरी નહીં હટે, બધાની સુરક્ષા થાય પછી નીકળી। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको राइट याद है कि ड्यूटी याद है? एक आचार्य हूँ, मेरा राइट नहीं, मेरी ड्यूटी है इस संघ के योगक्षेम करने की। आप पिताजी हो तो पिताजी का राइट नहीं, पिताजी की ड्यूटी है, पूरे परिवार को योगक्षेम तुम कर सकते हो। मान लिया बहू बन के तुम किसके घर से आई हो तो तुम्हारा राइट नहीं, बाद में करना तुम्हारी ड्यूटी है, इस घर को मुझे संभालना है। आपके मन की मानसिकता में जानना चाहता हूँ, आपके मन में विचार क्या चलता है? ट्रस्टी छो, संघना सभ्य छो, परिवारना सभ्य छो, कोई बैंक में छो, मैनेजर छो, क्लार्क छो, जे पण दरेकनी आगळ कंईक तो राइट है। आपको मालूम है अब्दुल कलाम ने वो कोटेशन लिखा है ना, क्या लिखा मालूम है? एक कोटेशन में राइट और ड्यूटी दोनों की बात आई है। अब्दुल कलाम ने कोटेशन ये लिखा कि मैं आज की युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ, तुम ये पूछते हो कि देश ने मेरे लिए क्या किया, ये तुम राइट की बात करते हो, और मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ देश के लिए तुमने क्या किया, ये ड्यूटी की बात। संघे मारा माटे शू कर्युं नहीं, संघने माटे मैं शू कर्युं, आ शासने मारा माटे शू कर्युं नहीं, मैं शासन माटे शू कर्युं, गुरुदेव तमे मारा माटे शू कर्युं नहीं, मैं आपना माटे शू कर्युं। ऑन द एज ऑफ 76 में मर्दानगी के साथ निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी ड्यूटी। परमात्मा की करुणा, गुरुदेव की कृपा से इस पवित्र जीवन मुझे मिल गया, और साधना करते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो मेरी थकान को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। चाहे वीआर हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, मगर जब भी मुझे मिलता है मेरी ड्यूटी मुझे याद है, संघ का योगक्षेम करना मेरी जिम्मेदारी है, और मर्दानगी इसमें निभाऊंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको हैप्पीनेस चाहिए, कभी आपको राइट नहीं, ड्यूटी की बात कब याद है? यहाँ बैठने वाली माता को बोले एक दिन तो तुम 3 दिन निकाल दो कि मेरी गुरुदेव ड्यूटी है, क्या कमाल। और तमने खबर है, मजा कॉमेंटना मूडમાં નથી કહેતો, शायद तुमने ही तुम्हारे घर में ये देखा होगा जो मैं बोलता हूँ अभी, तुम्हारे घर में ही तुमने देखा होगा
તમારા બાપુજી બહારથી 8-10 મહેમાનને આમંત્રણ આપીને આવે છે ને ઘરે, તો તમારી બાને પૂછ્યું નથી, તમારી મમ્મીને સીધું કીધું છે કે 10 જણા હમણાં આપણા ઘરે જમવા આવે છે, ત્યારે પત્ની માં એટલું જ બોલી છે, સે વાતે બળગાડજો, 15 મિનિટનો મને ટાઈમ આપો, બધું સાચું છે ખોટું? સાચું બોલો, શું હતું? તમારે મને પૂછ્યું છે રાઈટ, કઈ શબ્દ જ નહોતો, નહીં કંઈ શબ્દ નહોતો, વાત હતી આપણા ઘરમાં છે તો આપણી ડ્યુટી છે. માં મજેથી એ ડ્યુટી નિભાવતી હતી, ગાળો પણ નહીં, પછી પણ નહીં, ચહેરાની પ્રસન્નતા છે, આવનારા મહેમાન પણ ખુશ થયા. આ એક વ્યવસ્થા આખી હતી, દરેકને યાદ હતું કે આપણી ડ્યુટી છે, એમાં કંઈ નવું નથી કરતા. આજે આખી સ્થિતિ ફરી ગઈ, આખી સ્થિતિ. કોમેન્ટ કરવાના મૂડમાં નથી, બાકી તમને કહું શું હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. તમે મહેમાન બનીને કોઈને ત્યાં જવા રાજી નથી, તમારા ઘરમાં મહેમાન બનીને કોઈ આવવા રાજી નથી. ભલે બંગલા તમારા મોટા થઈ ગયા, ગાડી તમારી 4 પાર્કિંગ છે, નો વન ઇઝ રેડી ટુ કમ ટુ યોર હોમ. શું થઈ ગયું? આ કેમ થઈ ગયું પૂછું છું? બંગલા મોટા થઈ ગયા, પૈસા ચિકાર થઈ ગયા, વ્યવસ્થા જોરદાર થઈ ગઈ, મહેમાન ઈચ્છતા જ નથી. તમે સીધા જઈને ચડો, પૂછીને આવવું જોઈએ ને કે જાણવું તો ખલાસ થઈ ગઈ बात. ये मेरे घर की भी बात है, आप सबके घर की. मैं अभी जो बोला ना, वो आपने शायद अभी होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है. 10 मेहमान 11 मेहमान रोड तो मेरे तो बात अलग है. एक हमारे वहाँ पहचान थी, चढ़ता दिनों पारखું નીત આવે મહેમાન. તમારા દિવસ ચડી રહ્યા છે નું પારખું એક તમારા ઘરે રોજ મહેમાન આવે, રોજ. ચડતા દિનનું પારખું નીત આવે મહેમાન, પડતા દિનનું પારખું ઘર ના આવે સ્વાન. કૂતરા પણ જ્યારે રોટલી લેવા ઘરે ના આવે ત્યારે સમજવું દિવસ પડતા થઈ ગયા. तुम अमीर हो गए तो मेरे घर के, वो अमीरी तुमने देखी नहीं, ये दिल की अमीरी. ये हैप्पीनेस का जो राज होता था ना, 10 लोगों के बीच में वो बोलते थे कि आज हमारे घर में 11 मेहमान आए थे, मजा आ गई. वो नहीं टेंशन नहीं, वो बोलते थे मजा आ गई. बहुत छोटा रहने का भी 1 रूम किचन शायद था, और उनमें सब ऐसे रह जाते थे कि जैसे तुम सोचो नहीं. आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या, राइट या ड्यूटी? नो रेस, नंबर 1, नो रिकॉर्ड, नंबर 2, नंबर 3, नो राइट. विरोध नहीं करना चाहता हूँ, राइट मांगना नहीं है, राइट मिलता है. मैं तो भावे से नहीं पूछू बेड राख्યું છે કે નહીં, નથી પૂછ્યું, તમે રાખ્યું. પણ તમે કહી શકો હું આચાર્ય તરીકે આવું તો રાઈટ છે, બેન્ડ વાજા સાથે જ આવીશ નહીં. આ તમારી ફરજ જે તમે બજાવી, ન બજાવી તો મને કોઈ ફરક નહોતો, મારે તો મારું કામ કરવાનું છે. आपके इस इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या, राइट की ड्यूटी की? खाली एक नानकड़ो प्रश्न पूछी लो. टॉप गियर में तुम्हारी गाड़ी जाती है और रास्ते के कोने पे नल खुला पड़ा है, सच बोलो, गाड़ी खड़ी रख करके नल बंद करके फिर ही आगे निकलेंगे, ऐसे ही भागेंगे? नहीं मैंने जवाब आओ हैं શું થયું આગળ? હવે સાચું બોલો, આ પાણીનો નળ બંધ કરવો એ નરેન્દ્ર મોદી આવે કરવા? એટલે તમે ભલે હશો, આટલું પણ તમને નથી પડીને, આટલું પણ નથી પડીને. રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ છે, હું રાષ્ટ્રીય નાગરિક છું, એક રાષ્ટ્રમાં રહેવામાં કારણે બધા રાઇટ્સ માગું છું, તો મારી આ જવાબદારી પણ છે. કોઈએ નળ ખુલ્લો મૂક્યો છે, મારે બંધ કરવો જ જોઈએ, એમાં શું છે નવું? આટલી અક્કલ નથી, આટલો રાષ્ટ્રપ્રેમ નહીં. मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपकी मेंटालिटी क्यों बन चुकी? नहीं, मुझे जवाब चाहिए. मैं ऐसी सीधी बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप रीच बन गए, सक्सेस बन गए, हैप्पी क्यों नहीं रहे? और मैं इनका राज बताना चाहता हूँ, ऐसी किताब एक बार पढ़ लो और रिवर्स में चले जाओ, आपकी तबीयत बन जाएगी. ये 5 चीज कैंसिल कर दो, हैप्पीनेस आपके बस की बात है.
आपके कान पे कोई बाल देगा, आपके साथ था ना उनको 5 करोड़ का मालिक में, ओके, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है, मैं मजे में हूं। नहीं, सक्सेस की हैप्पीनेस तो मैं बताऊं, पूछा प्रश्न तो मुझे आनंद आया। जितने भी सुसाइड हुए इसमें तुझे चेक करना, सक्सेस ने किया होगा, रिच ने किया होगा, हैप्पी कभी सुसाइड करता ही नहीं। नहीं, मैं झूठा हूं तो मुझे बता दो। सक्सेस आदमी ने सुसाइड किया होगा, रिच ने किया होगा, हैप्पी कभी सुसाइड करता नहीं होता। जरूर क्या है, जरूर क्या है, हाँ મળ્યો મળ્યો અનુભવ શું કહે છે? સક્સેસથી સંતોષ મળે એમ પૂછ્યું છું, મળે જ નહીં. તમને નાનકડી બે વાત કીધું, અમારી ને તમારી ક્યાં બે છે? લોભ અને પ્રેમ, બે વાત, ગ્રીડ એન્ડ લવ. તમે એની ઓરિજિનાલિટી સમજી રાખો. છેલ્લું શિખર દેખાય અને તમે સર કરવા જાઓ ત્યાંથી આગળનું શિખર દેખાય, એ ગ્રીડ પણ છે અને લવ પણ છે. પ્રેમ ક્યારેય અંતિમ હોતો નથી, એ પરમાત્મા બનાવી રહે પછી જ અંતિમ. મને એમ લાગે મેં ગુરુદેવ ઉપર પ્રેમ કર્યો, ઘણો 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 ચિકાર, હવે નહીં, ઇનફ, બસ પ્રેમના શિખર નડી ગયો. જ્યાં અડવા જાવ ત્યાં આગળનો પ્રેમ દેખાય, અરે બાકી છે, હજી આગળ ચાલો. પ્રેમમાં આ તાકાત છે, છેક તમને દોડાવી દોડાવીને પરમાત્મા બનાવી દે, અને લોભમાં આ તાકાત છે, દોડાવી દોડાવીને તમને શૈતાન બનાવી દે. લવ એન્ડ ગ્રીડ તમને શિખર દેખાડે, પણ એ શિખર ક્યારે અંતિમ નથી હોતું. શિખરનો વિરોધ નથી, સીડી નથી દેખાડતું, શિખર જ દેખાડે છે. પણ જેવું એ શિખર સર કરવા જાવ ત્યાંથી આગળનું શિખર તમને દેખાય, જે એથી નહોતું દેખાતું તમને. તળેટીથી હિંગળાજનો હળો દેખાઈ શકે, પણ દાદાનું શિખર કદાચ ન પણ દેખાય ને, બરાબર છે ને? એ આગળ જ દેખાય, એ ચડ્યા પછી ખબર પડે. તમારી સામે પ્રવચનમાં આવે અમે જાણ સાજુ, આમ તમને લોજિકલી પૂછ્યું, 10 રોટલીની ભૂખ હોય અને 5 રોટલી આવે તો અડધી ભૂખ તો ઓછી થાય ને, બરાબર છે? સાચું બોલો, 10 કરોડનું તમારું ટાર્ગેટ હોય, 5 કરોડ આવે એટલે અડધી શાંતિ આવે કે હોય પણ વી જાય. અનુભવ શું કહે છે? હતી એ પણ ગઈ, નહીં હતી એ પણ ગઈ. શું કહ્યું? કશું ના આવે તો? હા, અમારા ઘરમાં રહેલા ફ્લાવર હાઉસમાં ફૂલ ન હોય તો કાંઈ પણ ધૂળ તો ભરાય, કરો. કાંઈ ન હોય તો ખાલી રખાય, ધૂળ ન ભરાય. વેક્યુમ પણ ગૌરવ છે. સ્તુતિ બોલતા ના આવડે તો ગાળ ના બોલાય, મૌન રહેવાય. ક્યારેક તો કોઈ સાધુનો ઇન્ટરવ્યુ લો, મારો ઇન્ટરવ્યુ લો ક્યારેક. What is the secret of our happiness? हम जिस अमली में चातुर्मा करके आए ना, वहाँ शायद करीबन, झूठ तो नहीं बोल सकता साधु जी में, एवरेज लोगों का फ्लैट 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ एवरेज. जिस दिन विहार था, 1 मिनट में भी ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा टॉप एरिया छोड़ के निकल जाना, नथिंग एल्स. चलो, और जिस उपात्र में भी पॉसिबल, वहां बारी भी खिड़की भी बराबर नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता. आटली हमारी ताकत. ये 10 करोड़ना फ्लेटમાં રહેનારા ત્યાં ગોચરીમાં રોજ મીઠાઈ ફરસાણ કદાચ મળતા હોય, અરે બીજે દિવસે બિયાર કરી ઘી વિનાની રોટલી મળે, એક સાધુના ચહેરા ઉપર આટલો પણ ઉદ્વેગ નથી. ગુડ ગોઈંગ. આ તાકાત તમે કેળવી શકો છો. 10 કરોડના ફ્લેટમાંથી 1 રૂમ કિચનમાં આવવું અને એવી જ મસ્તી ને એવી પ્રસન્નતા, એવી સ્વસ્થતા, એવું ચહેરા ઉપર સ્માઇલ પોસિબલ તમને લાગે તમારી આગળ? અમારી આગળ છે.
झूठ नहीं बोलता, वी आर रियली हैप्पी. नो रेस, नो રેકોર્ડ, નો રાઇટ. મારા સાધુએ કોઈ દી મને કીધું નથી ગુરુદેવ શિષ્ય તરીકે મારો અધિકાર શું, નહીં, ક્યારે પણ નહીં. રામે નથી માગ્યું. આપની માલિકી છે, આપને ઠીક લાગે ને આપી શકો છો. આ નીકળ્યો. प्रवचन में मैं आगे चलो, इसके पहले पूछूं, सच बोलो, आप चाहते हो कि यू वुड लाइक टू बी हैप्पी? लिटरली आप चाहते हो? आप इतना करो, आपके जिनमें जो भी नंबर है, नंबर में 1, 2, 3 नंबर ये देना है, तो आप सचमुच हृदय से मुझे जवाब देना. अभी आप हृदय से मुझे जवाब दो, रीच, सक्सेस एंड हैप्पी. यदि 3 आपको चॉइस करना है, नंबर, सिर्फ नंबर 1, 2, 3 नंबर आप किसको देंगे? दिल से बता देना, मुझे खुश करने के लिए मत बताना. आपकी थॉट्स और प्रोसेस, आपकी लाइफ व्यवस्था जो है, वो लाइफ व्यवस्था में आपने 3 को कहाँ रखा है? हैप्पी को कहाँ, सक्सेस को कहाँ और रिच को कहाँ? नो कमेंट प्लीज. मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है. मैं दिल से पूछना चाहता हूँ, आपके सामने 3 चॉइस है, नंबर 1 किसको दिया आपने? तुमने सर्वे नहीं देखा होगा. 2020 और क्या चल रहा है अभी 2023, 3 साल में इंडिया का पूरी दुनिया में रीच में ग्रोथ बहुत हुआ और हैप्पीनेस में पीछे चला गया. मालूम है तुमने? ये सर्वे तुमने पढ़ा है. रीच में बहुत आगे निकल गया इंडिया और हैप्पी में पीछे गया. क्यों? आपने कभी इनका ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया कि रिचनेस और हैप्पीनेस दोनों एक होते तो इंडिया आगे आनी चाहिए. मगर रिचनेस और हैप्पीनेस दूर दूर तक उनको किसी से, एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है. तुम ये मानते हो क्या? તમે માનો છો સંપત્તિ અને પ્રસન્નતાને કાંઈ સંબંધ નથી? આ તમે હૃદયથી માનો છો? માનતા હો તો હા પાડો, નહીં તો ના પાડો. સફળતાને પ્રસન્નતાને કોઈ લેવા દેવા નથી. સંપત્તિને પ્રસન્ન લેવા દેવા નથી. પ્રસન્નતા अपने आप છે, વગર સંપત્તિએ અને વગર સફળતાએ પણ તમે પ્રસન્ન મજેથી રહી શકો છો. યુ બિલીવ ધીસ? મને હા ન પાડો, મને કરો ચેલેન્જ. તમે બહાર જઈને એમ નહીં બોલતા કે ગુરુદેવની સામે જવાબ ના આપી શકો. બોલો, તમારી જે તાકાત હોય કાઢી નાખો અત્યારે. નહીં, હેપીનેસ ઇઝ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. રિચનેસ એન્ડ સક્સેસ બદલાતું રહે. આ બેની ડેફિનેશન બદલાતી રહે. પ્રસન્નતાની ડેફિનેશન ક્યારે નહીં થાય? ધીસ ઇઝ યુનિવર્સલ ડેફિનેશન. તમે તમારી જાતને રીચ માનતો. હેપી તો હેપી રહેવા માટે તો તમને ખબર નહીં, એની આખું એટીટ્यूड जुदो से. मैं बहुत जगह बात करता हूँ. 2 लड़के थे ना, तो नया नया कब परेड में फ्लैट नहीं होगा, एक लड़का दूसरे लड़के से बात करता था, यार अभी नया फ्लैट लिया ना, 50 करोड़ का तो टॉयलेट है, 50 लाख का, 50 लाख का टॉयलेट बना दिया मैंने. इतना मार्बल और मिरेकल. अभी टॉयलेट 50 लाख का. तो दूसरा इनका मित्र था, उसने बोला तूने क्या बनाया? एक बार आजा मेरे पास. क्या? 80 लाख का टॉयलेट. और ये दोनों चर्चा कर रहे थे. तो गांव का एक लड़का, गंवार लड़का था, वो बाजू से जा रहा था और उनके मित्र को बोलता ये दोनों साले उल्लू के पट्टे. अभी 50 लाख 80 लाख का टॉयलेट की बात करने वाले को बोले उल्लू के पट्टे. ईगो हट हो गया. नहीं, यहाँ किसको बोलता है? तुम दोनों को. क्या 50 लाख का टॉयलेट में बेवकूफ और ये 80 लाख का? तो निश्चित दोनों बेवकूफ. तो क्यों? तो कि તમને ખબર નથી, ગામડામાં મારું ખેતર 7 કરોડનું છે, એમાં હું ઠલ્લે જાઉં છું. You were the happy, not rich. ખેતરમાં સંડાસ જઈને પણ આને ચેલેન્જ કરી શકાય છે. તમે આ તાકાત મામૂલી માનો છો? दुनियाए तमने बेवकूफ बनाया, तमारी सोसायटी अपने बेवकूफ बनाया, पॉलिटिशियन ने बेवकूफ बनाया, संस्थाएं बेवकूफ बनाया, तमारी आजूबाजू वाले बेवकूफ बनाया और तमारा माँ बाप पण बेवकूफ बन्या. અત્યારે હમણાં દિવસો ચાલે છે ને, જેટલા છોકરા પોતાના મા બાપ પોતાના દીકરાની નામે જાણે
અને અત્યારે તો એવી સ્થિતિ છે, દીકરો દીકરી એક્ઝામ આપતા ત્યારે મા બાપ બહાર એ રીતે બેઠા હોય કે દીકરાનું બાયપાસ ચાલે છે અંદર. આ છે ને, જેટલા મા બાપ આવે વાસ્કેપ ના કે સાહેબ 10th છે, આ મજામાં છે, તું હોય ને દુઃખી છે એટલી. આ છે તમારી સ્થિતિ. બચપન ક્યાં છે, એ યુવાની ક્યાં છે? અમારે ત્યાં અલગ અલગ ડેફિનેશન હતી. પ્રસન્નતા હોય બચપન, ઉર્જા અને ઉત્સાહ હોય યુવાની, બધું જ ખતમ. પ્રસન્ન વિનાનું બચપન અને ઉર્જા અને ઉત્સાહ વિનાની યુવાની, જેને જીવતા મળતા ચાલતા હોય એવું દેખાય. પણ આ યુવાની જે 22, 18, 20 વર્ષે આટલો તો કમજોર થઈ ગયો. આ બોર્ડની એક્ઝામ એટલી બધી મહત્વની થઈ ગઈ કે તારી જિંદગી ખતમ કરી નાખી દે. પણ તમે, તમારા મા બાપે, આજુબાજુના બધા ચક્કરે તમને એવું દબાણ કર્યું છે, બધું પૂરું થઈ ગયું. नो राइट. एक बार तुम प्रयोग करो. मैं रिपीट करना एक बात कहूँ, दुनिया તમને જે રસ્તે દોડાવી એ રસ્તે ભલે દોડાવે. મને આજે યાદ છે, આકોટાની શિબિરમાં એકવાર મેં કીધું હતું કે જિંદગીના 50 વર્ષ તમારી બુદ્ધિનું માનીને ચાલે છો, ખાલી 50 દિવસ મહાવીરનું માનીને ચાલો. હું ઇનામ આપું, તમે ગાંડા થઈ છો. 50 વર્ષની સામે ખાલી 50 દિવસ આપો મને. 50 દિવસ સાહેબ, દુનિયા અમને ભગાવીને મોત સુધી દોડાવ્યા. બીપી આપ્યું, કોલેસ્ટ્રોલ આપ્યું, લીવરની તકલીફ આપી, સાહેબ બધું જ ખતમ કરી નાખ્યું. સાહેબ 50 દિવસ આપને આપ્યા, દેખાડો અને હું તમને કહું, રોગ જશે કે નહીં ખબર નથી, તમારી પ્રસન્નતા તમારા બાપની મૂડી થશે. ધીસ ઇઝ મોનોપોલી ફોર માય હેપીનેસ, ઇઝ માય મોનોપોલી. આ લોકો દોડાવે ને તમે દોડતા થઈ ગયા. यहाँ बैठने वाली माताओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को बच्चे रोको, इनको खत्म मत करो. नंबर 4, नो रायट. रायट माने लड़ाई, युद्ध, संघर्ष नहीं. ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज. नो रायट. कहीं लगे आपको कि कोई भी ऐसी बात बन चुकी है, उसमें संघर्ष तुम पैदा मत करो. मैं जो कहना चाहता हूँ एक बात समझ लेना, झगड़ो क्या पण थाय साहेब, झगड़ानो वन ऑफ दी पार्ट हूँ नहीं बनूँ क्यारे. बस आटलू ज. झगड़ो तमे रोकी न सको, पर झगड़ाना पार्ट तमे क्यारे नहीं बनता. नो राइट साहेब, मारू काम नहीं. मैं रिपीट करूँ, अनिश छाता लेके घर से बाहर निकले में बारिश रुकती नहीं है. छाता लेकर के घर से बाहर निकलो, इनकार ये नहीं कि बारिश रुक जाएगी, मगर बारिश आ जाएगी, छाता आपको सुरक्षित कर देगा. ये भगवान के वचन को लेके तुम चलेंगे तो ये गारंटी नहीं कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे, मगर ये वचन का छाता संघर्ष को निपटने की ताकत दे देंगे आपको. परिवार में संघर्ष हुआ, पति पत्नी के बीच में, भाई और बाप बेटे के बीच में होगा, मगर आप बोलो गुरुदेव मैं संघर्ष का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा. नो राइट. आने वाले दिनों में लोग बोलेंगे मेरा हिस्सा नहीं था, मैं लेट गो करने के लिए तैयार था, सामने वाले ने पकड़ के बेटा मेरे बस की बात नहीं, मैंने छोड़ दिया. इतना भी हम कर पाएंगे क्या? अभी मैं बताऊं क्या कर सकते हैं. बम्बई का लड़का, भावेश बम्बई, तुम मानो तो तुम्हें लगेगी गुरुदेव इससे भी पराक्रम करने वाले लोग होते क्या. रात के टाइम में वो गाड़ी लेके जा रहा था और इनकी गाड़ी अंधेरे में कहीं पार्किंग की हुई BMW के साथ गाड़ी टकरा गई. हैप्पीनेस क्या हो सकती है इनको आपको बताना चाहता हूँ. और टकरा गई, ड्राइवर भी नहीं था, मालिक भी नहीं था, गाड़ी पार्क करके वो तो अंदर गया था. रात को 11 बजे का टाइम. नीचे उतरा,
एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था मगर गाड़ी को डैमेज हुआ था। कौन सी? BMW की गाड़ी को। और उसने देखा, सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो गाड़ी पार थी, गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी, मुझे सोच के चलानी थी। मगर अंधेरे में कोई जल्दबाजी किसी विचार में था और गाड़ी टकरा गई तो और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर उसने क्या कमाल कर दिया। दिनेश सोच नहीं सकते, एक दिन तुम ये प्रयोग करके देखना क्या हो सकता है। नो राइट। और उसने अपनी जेब में से कार्ड निकाला, कार्ड निकाल कर कहीं से स्टेपलर लेके आया, स्टेपलर से कार्ड को वो BMW की गाड़ी के साथ चिपका दिया। अनीश, आपकी गाड़ी के साथ मेरी गलती से मैंने गाड़ी टकरा दी है और उसको डैमेज हुआ है। आप होते तो मैं आपकी क्षमा मांग लेता, मगर आप हो नहीं हो, इसलिए मेरी गलती से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और दूसरी बात, इस गाड़ी को रिपेयर कराने की जो भी खर्चा है, मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं नंबर पर पैसे चुका दूंगा। साचું बोलो, अभी उदारता આપણે કરી શકીએ। एक बार तुम इसके क्षेत्र में बैठ जाना, सामने वाले को पता नहीं, वो जानता नहीं है, फिर तुमसे कोई नुकसान हो चुका है, वो आपको पकड़ने वाला भी नहीं, पकड़ सकने वाला भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे कॉन्शियस को लेकर के ये व्यवस्था तुम कर सकते हो। नो राइट। गुरुदेव, संघर्ष का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। તમને શું લાગે છે? જયેશ એક નાનકડો પ્રશ્ન પૂછ્યો, આજે પહેલું પ્રવચન છે એટલે પૂછ્યું, તમે આમ ભગવાનનો માણસ કોને માનો? તમે તમારા સંસારમાં કોઈની ઓળખાણ આપો ને, ત્યારે તમે જ્યારે બોલો કે આ ભગવાનનો માણસ એટલે શું, આમ કોને કહો? તમે સમજીને બોલો। શું થયું? જલ્દીથી કોઈને ઉલ્લુ બનાવી શકે ભગવાનનો માણસ, અને તમને ઉલ્લુ બનાવે એટલે તમે કોને ગાળ દો છો? તમને કંઈ શરમ નથી આવતી? તમે મીરાને ભગવાનનો માણસ કીધો, નરસિંહ મહેતાને કીધો, પુણ્યા શ્રાવકને કીધો, સુદામાને કીધો, સબરીને કીધો તો માનત? એઠા બોર ખાઈને રામને માટે રાહ જોઈને બેઠી હતી। નાની ઉંમરનો પોતાનો મિત્ર દ્વારકા મળવા ગયો છતાં માગવાની હિંમત ન કરી। સુદામા લાખ લાખ ધન્યવાદ। ભગવાન મહાવીર આગળ સમોસણમાં જેના વખાણ કરે પુણ્યા શ્રાવકે ક્યારેય કીધું નથી કે ભગવાન આટલો બધો ગરીબ છું। તમે પુણ્યા શ્રાવકને ભગવાનનો માણસ ન કહો, સરળ માણસને ન કહો, અને તમે જેને છેતરી શકો, તમે જેને બેવકૂફ બનાવી શકો, એને તમે સીધા ભગવાનનું ટાઇટલ આપી ભગવાનનો માણસ, આ ભગવાનનો સંબંધી। ऋषभ चीने सर प्रीतम मारो और चावरे कन, आ भगवान नो मानस है। भगवान एक बात, पति है परमेश्वर नहीं, परमेश्वर है पति है। दुनिया के जो पति है परमेश्वर ने अध्यात्म जो परमेश्वर सिवाय कोई पति हो नहीं सके। ऋषभ चीने सर प्रीतम मारो। तमे आनंद गंजी ने भगवान नो मानस न को, तमे मने भगवान नो मानस न को, तमारी कुटिलता माने राज रमत में આવી જાય, જે તમારી બદમાશીને સમજી ન શકે એને ભગવાનનો માણસ કહેવાનો। આટલી હદે તમે નીચે ઉતરી ગયા। આવા માણસને ભગવાનથી તમે બદનામ કરી નાખો। ભગવાનનો માણસ એટલે શું? એને રમાડી શકાશે? બીજા માટેની તમારી ઓળખાણ એને જોઈને તમને થવું જોઈએ કે સાહેબ આવું જીવદણ મારું ક્યારે થશે? સાહેબ સામે ચડીને દુનિયાની છેતરાઈ જાય છે, અક્કલ બધી હોવા છતાં સાહેબ આ પવિત્રતા મને ક્યારે મળશે? નો રેસ, નો રેકોર્ડ। बोलो त्रीजू, नो राइट, नो राइट। और पांचवें नंबर की बात, नो रिस्क। आंधळू साहस क्या रही? रिस्क फैक्टर का विरोध नहीं है, मगर जैसे तुम बिजनेस के पीछे पागल बनते हैं ऐसा रिस्क लेते हो।
એક વાત અહીંયા બેઠેલા બધાને તમને કહી દઉં, જે નુકસાનને તમે જીરવી ન શકો એવું સાહસ બિઝનેસમાં ક્યારેય કરવું નહીં. જે નુકસાનને તમે જીરવી ન શકો એવું સાહસ દુનિયાના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમારે કરવાનું નહીં, જેની નિષ્ફળતા તમને છેક ડિપ્રેશનમાં લઈ જાય અને સુસાઇડ કરવા સુધી તૈયાર કરે, આવું સાહસ ક્યારેય નહીં કરવાનું. आप दावा के साथ कह सकते हो गुरुदेव वो रिस्क मैं कभी नहीं लेता. घड़ी વાર છે ને તમને મને કહેવત તમે જોઈએ ને કે શું તબેલાને તાળા ક્યારે મારવાનું આવે? હે, હા, હમણાં ઘણાએ માર ખાધો છે ને બધા બજારોમાં, નામ નહીં આપું, એટલે અક્કલ ઘણાને આવી ગઈ. ત્યારે એક જણ મને છે ને આંબલીમાં મળ્યો હતો. આંબલીમાં મને કે મારા સાહેબ આને શેર બજારમાં રૂક્યા હતા ને બહુ રડે છે ને, હવે પછી કે જિંદગીમાં ક્યારેય જવું નહીં, હવે આપણે સમજી ગયા આમ તેમ. તો મને એની સામે જ કીધું, મને કે ઘોડા ભાગી ગયા બી તબેલાને તાળું મારવાનું કોઈ જરૂર ખરી? મારી ઘર સર્ટિફિકેટ લઈ. મેં કીધું આ જરૂર ખરી. મને કેમ? મેં કીધું ગધેડા ન ઘૂસી જાય માટે. ખ્યાલ બરાબર છે. ઘોડા ભલે ભાગી ગયા, તમે લોકો લો તો કાલે ગધેડા ઘૂસી જશે, એટલે પણ તાળું મારી દેવું. થઈ ગયેલી ભૂલ પછી પણ રડવું, નવી ભૂલ ન થાય માટે. સાહેબ હવે રડીને શું કામ છે? એટલા માટે રડું છું, નવી ભૂલને પરમિશન નહીં આપો. એક વાર બેવકૂફ બની ગયો, હવે નથી બનવું સાહેબ. માની લીધું ઘણા બધા ચાલી ગયા, હજી પાછળ ઘણા છે સાહેબ. એવા આવીને તબેલાને ખલાસ કરી નાખે. બેટર એક વાર માર ખાધો, હવે નહીં ખાવ માર સાહેબ. और मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्जुन का साहस था, दुर्योधन का दुस्साहस था. मैं रिस्क की बात करना चाहता हूं. अर्जुन का साहस था, मगर दुर्योधन ने अर्जुन से पंगा लेने का जो काम किया वो दुस्साहस था, नहीं करना था. जब इनको पता कि पूरी ताकत इनकी, अर्जुन की ताकत कृष्ण में है और वो कृष्ण खुद इनकी फेवर में, तब ये दुस्साहस मुझे नहीं करना था, कॉम्प्रोमाइज कर लेना था. मगर अपने अभिमान ने कोई समाधान करने के लिए मजबूर नहीं किया. नहीं, देख लूंगा. कर्ण जैसा ताकतवान, तुमने कभी महाभारत पढ़ा हो ना, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं. दुर्योधन અને શકુની મિત્ર હતા, દુર્યોધન અને કર્ણ મિત્ર હતા, અને અર્જુન અને કૃષ્ણ મિત્ર હતા. તમે ભેદ રેખા સમજો. श्री कृष्ण खुद कर्ण के पास गए थे और कर्ण में तुझे वादा देता हूं मैं अर्जुन के पक्ष में न रखे कि तेरे पक्ष में जाऊंगा, एक बार सिर्फ दुर्योधन का साथ तो छोड़ दे. और इफ एंड बट की बात करूं ना, तो मैं निश्चित कहूंगा, यदि कर्ण दुर्योधन अर्जुन की फेवर में श्री कृष्ण नहीं होते ने, तो कर्ण के सामने अर्जुन का टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. इतनी ताकत वाला कर्ण मार गया, इसका कारण का कर्ण की ताकत थी, मगर दुर्योधन की दोस्ती कर्ण की कमजोरी बन गई. तमने फरीवार गुजराती में कहूँ, दुर्योधननी कर्णनी ताकत दुर्योधनना कारणे कमजोरी बनी गई અને અર્જુનની કમજોરી કૃષ્ણની તાકાતના કારણે બહાદુરી બની ગઈ. आप कमजोर हो तो भी ताकतवान बन सकते हो यदि कृष्ण आपका सारथी हो तो, और आप कितने भी ताकतवान हो मगर कमजोर बन सकते हो यदि दुर्योधन की तुम्हें इनकी फेवर तुम करते हो तो. मैं इतना कमजोर होने के बाद कहाँ से आई ये ताकत? मैं सिर्फ मैट्रिक पास, न कॉलेज कभी मैंने देखी थी. कितने साल जिंदगी तक एक पोस्टकार्ड डिक्टेशन लिखाने के लिए मैं गुरुदेव के पास जाता था. आई वॉज नॉट एबल टू राइट पीसी. ये ताकत कहाँ से आई?
अर्जुन कभी ताकतवान होता नहीं, मगर कृष्ण आने के बाद अर्जुन कभी कमजोर रहता नहीं है। कोई भी साधक अपने आप से ताकतवान होता नहीं, मगर जब इनके सामने गौतम ताकतवान नहीं थे, महावीर के चरण में झुके, फिर ताकतवान बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा सर झुकेगा तो किसको, हमारी अंगुली पकड़ेगी तो किसके हाथ को पकड़ेगी, हमारे सर पे किसी का हाथ रहेगा तो किसका चाहते हैं, किसका? मारा मस्तक पर हाथ कोनो, मारी आंगળી कोना हाथમાં, मारा पग कोना चरणમાં, मारा हृदयમાં कोण? ये पूरी जिंदगी पर तक हमारी ताकत बनी रही और आने वाले दिनों में यही तो हमारी ताकत बनी रहने वाली है। नो रिस्क, नो राइट, नो राइट, नो रेकॉर्ड, नो राइट एंड नो रेस। खाली 3 દિવસ માટે તમે એક નક્કી કરો, કાંઈ નહીં. તમારા કાને દુનિયાભરના સમાચાર આવે, તમે કહો હું મજામાં છું. તમારી આગળ નીકળી ગયો, ધન્યવાદ, મારે નથી જોઈ ની આગળ. और रिपीट करूं, जानबूझ करके खरगोश आ रहा, कभी तुम्हारो जानबूझ के एक बार प्रयोग करो, 1 महीने के लिए प्रयोग करो. गुरुदेव 12 से 6 बस बिजनेस को दिया है, ओनली फॉर 1 मंथ. सामने वाले को तुम फोन कर सकते हो 12 बजे के पहले, मोबाइल से भी मुझे बात करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर बिजनेस. एक प्रश्न पूछीने प्रवचन नहीं मेरा, साच बोलो. अनडिवाइडेड टाइम तमे कोने आपो? अनडिवाइडेड टाइम. बहु गंभीर बात करूं तुमने. व्हाट मीन्स अनडिवाइडेड टाइम? मैंने अनिश क्या अर्थ होता है अनडिवाइडेड टाइम? माने अब ऐसा रिलेशन आपके पास कितना है कि जिनको टाइम में तुम किसका हिस्सा और नहीं रख सकते हो. आपके बेटे के साथ की बात चलती है और उसी टाइम आपकी जेब में किसी का मोबाइल की घंटी बजी, अनडिवाइडेड टाइम होगा, आप उनको बोल देंगे बेटे से बात चलती, नो वन विल कम विथ मी. साच बोलो, एक के व्यक्ति साथ तमारो अनडिवाइडेड टाइम है. आ व्याख्यान में कहूँ पड़े कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, शू है कलंक है ने. भले तमने कहવું પડે છે પણ આમ તમને ક્યારે કલંક જેવું નથી લાગતું? અરે ભગવાનના વચન ચાલે એવા ટાઈમમાં અનડિવાઇડેડ ટાઈમ હું ગુરુદેવને નહીં આપી શકું. અત્યારે હું મારા ગુરુદેવને મળતો હોઉં ત્યારે અનડિવાઇડેડ ટાઈમ એમની આ રહેનો, વચ્ચે હું કોઈને વાત કરું, મારા શિષ્યને મળું ત્યારે વચ્ચે કોઈને ઘૂસવા દઉં, એમ તમારી તાકાત છે, વાત કરી જાઓ. बरसों पहले माटुंगा में था, एक भाई ने रत्नागिरी ट्रस्ट में 5 लाख का डोनेशन दिया था. ठीक है, उनकी इच्छा थी इसलिए दिया था, मैंने कोई प्रेरणा नहीं की थी. और 4 दिन के बाद वो अमेरिका जाने वाला था, मुझे मिलने के लिए माटुंगा में बंधन किया. मारे साहब 15 मिनट आपका काम है, और मेरे साधु को मैं पाठ दे रहा था. मैंने बोला अभी नहीं, आफ्टर 15 मिनट्स. मारे से मारे पिल्लरનો टाइम दी गयो, यू कैन गो. जय 5 लाख આપે એટલે પોઝિશન નહોતું ને, એના મનમાં પોઝિશનનો ભાવ આવી ગયો. मारे से मैंने 5 लाख, मैंने बोला अभी चर्चा नहीं, पाठ चलता है. आफ्टर 15 मिनट्स गया, अमेरिका गया, फिर वापस आया, तब उसने मेरे पास आकर के रोना शुरू कर दिया. मारा साहब 5 लाखનું ડોનેશન આપીને પછી ખાલી મેં આપની આગળ 15 મિનિટ માગી હતી ને આપે મને ના પાડી દીધી. હું કેમ શું પણ ના પાડી એટલે શું થઈ ગયું? હું તમને ના નથી પાડી, મેં તમને એટલું કીધું હતું કે 15 મિનિટ તમે બેસી જાઓ, પછી તમને ટાઈમ આપું. મને હવે તમારો તર્ક સાંભળો. એનો તર્ક એ હતો કે મારા સાહેબ આપના શિષ્ય તો જિંદગીભર આપની સાથે છે, આપ એને ગમે ત્યારે પાઠ આપી શકતા હતા. મારે ઉતાવળ હતી. મેં કીધું કે જો તમે કદાચ 5 લાખ મારા માટે છોડ્યા છે, મારા શિષ્ય આખી જિંદગી મને સોંપી છે, તમારા ભોગે એમનો તમે મને ખાલી એટલું વચન આપો, અનડિવાઇડેડ ટાઈમ તમે કોને માટે કાઢો છો? તમારી આંખમાં જોરદાર આંસુ ચાલશે. જે દીકરાને મળ્યું એકલો બાપ છું, એ મારી આગળ ટાઈમ માંગે, પપ્પા મને ખાલી 15 મિનિટ આપો. નહીં નહીં નહીં, મારે ટાઈમ નથી. કોને કહો છો તમે?
એક વ્યક્તિ નથી તમારી જિંદગીમાં તમને ચાલુ પૂજામાં કોઈ લઈ જઈ શકે? પ્રવચનમાં આવો ને ચાલુ પ્રવચનમાંથી તમને કોઈ વાત કરીને ઉઠાવી નહીં જાય. બહુ અગત્યનું કામ છે. શું છે કામ? वी आर किंग. कई लोग हमने ऐसे जीवन में नंबर दिए जिसके साथ अनडिवाइडेड टाइम नहीं. आप बीच में नहीं आना प्लीज. 4 महीने में 21 दिन तक मैं साधना करता हूं अनडिवाइडेड टाइम टू ओनली गौतम स्वामी. प्रवचन भी मैं नहीं करता हूं. प्रवचन करने का समय है बहुत. इस 21 दिन में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. गौतम स्वामी के साथ मेरा ट्यूनिंग चलता है. इफ यू लाइक टू बी हैप्पी, आपको ये व्यवस्था निश्चित तौर से बनानी पड़ेगी. 100% न बने तो भी इस दिशा में तुम थोड़ा प्रयास तो करना. रेस इनकी गति थोड़ी कम कर देना. रिस्क थोड़ा सोच के लेना. राइट थोड़ा सोच के मांगना. राइट थोड़ा सोच के रिकॉर्ड. बहुत नजदीक उपकारी है उनको तो भूल जाऊंगा. ये यदि आपकी शुरुआत होगी, मैं दामा के साथ कहना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आकर के गोद में सर रख करके बोलेंगे गुरुदेव कमाल हो गया. अभी पता चलता है कि जिंदगी भर तक आप मस्त कैसे रहते होंगे. 3 दिन में हम पागल बन गए. आपके पास तो पूरी जिंदगी है. कितने साल के बाद आना हुआ? 1 साल के बाद. દર્દીને જોવા આવ્યો છું કેમ છે. હા હે આઉટડોર પેશન્ટમાં જલ્દી ખબર ન પડે. ઇન્ડોર પેશન્ટનું તો જલ્દી ખબર પડે કે કેવો છે આ. પણ શું કહ્યું? હા એ તો બરાબર છે. ડૉક્ટર કેમ છે એટલા માટે તો રોજ મને સાતા પૂછો છો. हम एक नई यात्रा पे निकलेंगे. मैं दिल से कहना चाहूँगा, सिर्फ प्रवचन में तुम आओ और भीड़ बने इसे नहीं. आपके बेटे को भी बुलाओ. बेटा तेरी जिंदगी भी बन रही है, एक बार सुन ले और जिंदगी का निर्णय तो तय कर लेना. आपके बेटे को आपकी बेटी को मैं बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ. कल का दिन फिर भी यहाँ है. फिर 11 दिन अकोटा में 9 से 10 एक अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के गुरुदेव की परम करुणा और परमात्मा की कृपा से जो भी मिला है आपके सामने पुटअप करते रहूँगा. और मांजलपुर श्री संघ की विनंती, शाश्वती चैत्र मास की ओली, इनकी आराधना वहाँ. पेमेंट लेने के लिए बहुत दूर तक जाते हो तो प्रभु के वचन सुनने के लिए भी हम जा सकते हैं. प्रश्न सिर्फ टाइम निकालने का है, टॉप प्रायोरिटी देने का है. मैं चाहता हूँ आप इनको टॉप प्रायोरिटी देंगे ही. कल एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट इनको लेकर के आपके सामने आऊँगा. अभी 1 महीने के पहले अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव चला. नंबर 400 से 411 तक की किताब इनका विमोचन हुआ. फिर भी 3 किताब का सेट. आज के संदर्भ में जो बोला उसमें भी कई बात उसमें आ जाती है. वो 3 किताब का सेट करीबन 250 रुपये का आज के दिन सिर्फ 50 रुपये में बाहर उपलब्ध होंगे. जिनको भी लेना है 3 किताब का सेट बाहर से ले लेने का ख्याल रखें. कल ठीक इसी टाइम पे हम प्रवचन के लिए दोबारा जाएंगे. पचकाणुपास श्री गणम पाणारुगण श्री आई बिलगणम आई बन ठाणनम पारिठामणि श्री सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधान सर्वधर्माणम जय.
वैराग्यनी पद धारे वात्सल्यनी